So let's continue from where we stopped last time. Last time we had made our way to the point where we had formed word document vectors. So frequencies of the terms in a document as an identity of the document. Then we reversed it and we see, okay, we can represent a word based on the count of that word in a particular document. And then as a third step, we formed term matrices, which you see here, where we had defined some sort of a neighborhood, and now we were just counting the occurrence, the co-occurrence of the two words in each other's neighborhood as the indication of कि वो word की identity क्या है. So इस पर build करना but yeah. So let's continue this. If we plot just two of these three words, the word information and digital, in just two of these dimensions of other words, so digital as co-occurring with computer and digital as co-occurring with data and information co-occurrence with computer and data, we find that both of these vectors form really high correlations with both of these words, जिनको हम देख रहे हैं, these neighborhood words, and we can see that both of these vectors are pretty much pointing in a very similar direction. So we are getting some sense of a meaning here. Now, this term matrix or this word matrix, or it's also called the term context matrix, इसके अंदर similar words have similar context word vectors. Each cell records the number of times the row target word and the column context word co-occur in some context or in some training corpus. The context would be a document. So हम इसको document base पर भी कर सकते हैं. So for example, कब हम कहेंगे कि दो words को occur कर रहे हैं? When do we increment the count? We can increment the count, for example, at a very low resolution. For example, entire document में दो चीजें इकट्ठी आ गई हैं. Okay, that plus one. Yeah, it could be paragraph based. It could be a window based. It could be as small as a neighborhood of just one word, one preceding and one following word. So the resolution could change. And later on, we will also study somewhat of the impact of the window size on the kind of neighbors that you capture. अगर विंडो बड़ी से बड़ी करते जाएंगे तो नेबरहुड से क्या होगा? अगर विंडो छोटी से छोटी करते जाएंगे तो उसके नतीजे में आप किस किस्म के सेमेंटिक्स कैप्चर कर रहे होंगे. ठीक है? All right. So cherry and strawberry are the more similar to each other, जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं. Then to the other words like digital, both pie and sugar tend to co-occur in their window. Digital information are more similar to each other than to strawberry. So ये कुछ basic चीजें हमें इसमें नजर आ रही हैं. Now our first function to compute similarity. By the way, we have an entire section of our discussion जहाँ पे हम similarities और differences पे चले जाएंगे. Again, build करेंगे machine learning पर. जो वहाँ कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ नई चीजें ऐड करेंगे. The one that I'm about to teach you now, at least I did not cover in my machine learning course, and that is the cosine similarity. But let's build towards that. Now that we have word vectors, and I want to find out whether two words are similar to each other, suddenly, as soon as we're in the vector space, everything vector starts applying. तो जितना कुछ हमने वेक्टर्स का अरिथमेटिक सीखा हुआ है वो सब अब अप्लाई हो सकता है और उसके वही कंक्लूजन्स निकल सकती हैं जो हमें वेक्टर्स के बारे में पता है. सो फॉर एग्जांपल, डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, इफ द वेक्टर्स इंडीड रिप्रेजेंट मीनिंग, दैट शुड रिप्रेजेंट ऑपोजिशन इन द मीनिंग. इन दोनों चीजों का कोई ऑपोजिट मतलब है या ऑपोजिट कॉनोटेशन है या ऑपोजिट डिग्री के ऊपर ये एग्जिस्ट करते हैं. सो वी आर गोना सी दैट. But the first step towards that is finding just the similarity or the difference or the distance between two vectors. So your dot product at a very simple level could be one measure of finding the similarity between two vectors. So the dot product is simply defined as this element by element product or uska sum. So ये हमारा dot product है. The problem with the dot product, so it's going to give you a number. By the way, what are the bounds on this number? Dot product. What's the minimum and the maximum value that we can have for the dot product of two arbitrary vectors? Minus 1 and 1? Are you sure? मतलब बोल दो ना मैथमेटिकली उस चीज को. हाँ, तो हिम्मत करके बोल दो उसको ना. So minus infinity to positive infinity, there is no bounding factor here, there is no normalizer here. You're just multiplying and adding. Minus 1 to 1 तो तब होता ना अगर आपने इसको cosine बना दिया होता. कोई normalizer नहीं. It's a dot product. It's not a cosine. So now when you have this,
there are now several factors which will become important when we are computing similarities and differences between two vectors. देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम क्या ही रहे हैं, by the way you really need to understand this at its core, because ये cosine similarity is going to be with us throughout the discussion. It's one of the most popular similarity mechanisms which is used in natural language processing. तो आपको इसकी समझ होना जरूरी है. ये जो अभी हुआ है ना कि आपको बाउंड्स भी याद नहीं आ रही थी, ये जरा काम तंग करेगा आगे. Okay, let's think about this. We find the dot product of two vectors, let's say v and w, और इसके नतीजे में let's say we get an answer x. Now if x is a big number, what's the interpretation? What would be the interpretation of a large answer, of an answer with a big magnitude? G, they're pointing in the same direction, meaning the words are similar to each other या same. ठीक है. Okay, so इसके बड़ा होने का मतलब है words एक जैसे हैं. इसके छोटा होने का मतलब है up to a certain point, for example 0. उसका मतलब है कि ये दो वर्ड्स एक जैसे नहीं हैं. Essentially इसका मतलब होता है कि ऑर्थोगोनल होते जा रहे हैं. एंड देन इसके नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, यही कुछ हमें वेक्टर से पता है. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. इट्स एन एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट. सपोज आई हैव two words, word 1 and word 2, and suppose I represent them using a vector of dimensions 100 versus I represent them using a vector of dimensions 1000. Now think of the outcomes. अगर ये 100 dimensional vectors हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो इसका आंसर आएगा वर्सेस कि अगर ये 1000 dimensional हैं और सपोज बाकी चीजें सिमिलर हैं, इसका आंसर यकीनन ज्यादा बड़ा होगा बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट एंड देन एडिशन. तो अगर वेक्टर लंबे हो जाएंगे तो आपके आपके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी. डू वी वांट दैट? वी डोंट वांट दैट. इट शुड नॉट हैपन. इस चीज के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए कि वेक्टर कितना लंबा है, इस पर डिपेंडेंस होनी चाहिए कि दोनों चीजें कितनी सिमिलर हैं. सो देयरफॉर देयर इज अ केस फॉर नॉर्मलाइजिंग इट. देयर आर अदर केसेस फॉर नॉर्मलाइजिंग इट एज वेल, बट वन ऑफ द मेन केसेस इज कि ये डॉट प्रोडक्ट आपका लेंथ पे डिपेंडेंट होता है. सो लिहाजा वी नॉर्मलाइज इट, एंड वन वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग दिस कुड बी, और हाँ इसमें एक और मसला भी आ जाता है. वो मसला ये आ जाता है कि यूजुअली आपके जो डेंसर वेक्टर्स होंगे, they're going to form larger values of dot products with other vectors because वो ज्यादा elements के साथ co-occur कर रहे होंगे. Word like the बहुत सारी context windows में occur कर रहा होगा. Word like is, am, are बहुत सी context windows में occur कर रहा होगा. Whereas a word like, for example, hospital, or a word like, I don't know, Romeo, will not be occurring in many windows. तो उसके vectors निस्बतन sparse होंगे. तो अब ये दो प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं. एक स्पार्सिटी और डेंस होने का मसला है जो शायद हम पूरी तरह अभी सॉल्व नहीं कर सकेंगे फौरी तौर पे. इस एम्बेडिंग्स के साथ जो हम सीख रहे हैं वो हम आगे जाके सॉल्व करेंगे. दूसरा लेंथ का मसला है. लेंथ को तो हम सीधा सीधा नॉर्मलाइज कर देते हैं यूजिंग आवर यूजुअल मेथड. सो वी नॉर्मलाइज इट जस्ट बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स. जब हम ये कर देते हैं तो वी get the normalized dot product, which is essentially this, and we can see that this is just equal to the cosine of the angle between the two vectors. So this is what we call the cosine similarity of two vectors. It's the normalized dot product. That's the cosine similarity. अच्छा, इस cosine similarity के ऊपर अब क्या लिमिट्स हैं? ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? The angle cos कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? -1 to 1, right? Where 1 means perfect similarity, perfect alignment, 0 means orthogonal, and -1 means opposite. ठीक है. जिस किस्म के वेक्टर्स से हम डील कर रहे हैं अभी तक, उनमें नेगेटिव्स नहीं है. एलिमेंट्स की वैल्यूज नेगेटिव नहीं है बिकॉज दीज आर जस्ट फ्रीक्वेंसीज. किसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड अकर कर रहा है, दीज आर जस्ट प्लेन फ्रीक्वेंसीज. बिकॉज दीज आर ऑल पॉजिटिव, देयर इज नो वे फॉर अस टू गेट नेगेटिव वेक्टर वैल्यूज, एंड देयरफॉर यहाँ पे अभी 0 से लेकर 1 तक वाली चीज सिर्फ चलती रहेगी. -1 अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आएगा. हाँ, आगे जाकर जब हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स में जाएंगे तो वेक्टर्स विल हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज एंड द एंटायर कोसाइन रेंज विल स्टार्ट अप्लाइंग. अच्छा जी, इससे आगे अब काफी सारी इसकी ये सारी डिस्कशन हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा. ओके, मैंने ये करके भी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. ओके, नाउ वी बैक हियर.
we have these vectors, now we can find the cosine in order to find out कि vectors कितने एक दूसरे जैसे हैं. अच्छा, ये बात अभी हम शुरू नहीं कर रहे, ये आखिर में जाके हम ये analysis करेंगे. Now that we have a way of representing words as vectors, and we have the entire vector arithmetic to deal with us, to deal with these things, we can do some interesting stuff. For example, आपने इस चीज का बहुत, this is actually very famous, in fact very notorious. So आपके पास ये vector space है, and you have the word say man, and you have the word say woman, and you have the word say king, and you find a vector, you draw a vector from man to king, and you find a parallelogram. So if you find a parallelogram, where you reach here is in the proximity of the word queen. So इस इन papers वगैरह के references मैं आगे डाले हुए हैं जहाँ पे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा. अभी we just wanted to show here कि ये वेक्टर बना देने से now interesting things will start happening. हमारे वेक्टर्स ऑटोमेटिक, सो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकेगा. सो इफ आई ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम अ कंट्री टू इट्स कैपिटल and then just take the same vector in the same direction and put it in front of another country, the vector will be pointing to a place जहाँ पे उसका capital मौजूद होगा. It's not going to be exactly that. वहाँ पे बहुत सारे words होंगे. So it's not always very clean. जो आमतौर पे जब आप इसका किसी पॉपुलर न्यूज में पढ़ रहे होते हैं ना, वैसा लगता है वहां एक ही वर्ड पड़ा हुआ था और बस वो सीधा जाके क्वीन पे रुक गया या सीधा जाके पेरिस पे रुक गया. इट्स नॉट दैट क्लीन. यू हैव टू डू सम आर्गमैक्स वगैरह वहां पर कि उन सारे वर्ड्स में से कौन सा वर्ड पिक करना है. यू ऑल्सो हैव टू रिमूव नॉइज वर्ड्स. वहां पे अक्सर होता है कोई ना कोई स्टॉप वर्ड्स पड़े हुए, नॉइज वर्ड्स पड़े हुए. सो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग, बट इट्स स्टिल good enough of an instrument. Usually जो ये किया जा रहा होता है, this is done with glove embeddings. ज्यादा एग्जांपल्स जो आपको मिलेंगे, हम ग्लव एम्बेडिंग से जिक्र करेंगे, लेकिन हम बनाएंगे सिर्फ स्किपग्राम और सीबो. तो हमने सिर्फ दो करनी है, ग्लव और फास्टेक्स का मैं आपसे जिक्र कर दूंगा, एंड देन विल मूव टू मोर सोफिस्टिकेटेड एम्बेडिंग्स. जी. या normalization won't solve that. That is a real problem, and that's why जब तक हम इन सिंपल किस्म के वेक्टर्स को यूज करते थे, स्टॉप वर्ड रिमूवल वाज अ कॉमन मैकेनिज्म जो कि हम क्लीनिंग के अंदर किया करते थे. डिपेंडिंग ऑन कि हम काम क्या करना चाह रहे हैं, हम स्टॉप वर्ड्स को पहले से रिमूव कर देते थे. तो द इज वगैरह को खत्म करके उसके बाद इस चीज से डील करते थे. तो उस वक्त तक जो है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का नॉइज का मसला बहुत ज्यादा था. ऑल राइट. सो लेट्स वेरी क्विकली टॉक अबाउट कि हम अब तक कहाँ पहुंचे हैं. हमारे पास जो चीजें अब बन गई हैं एज अपोज टू वन हॉट वेक्टर्स, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मीनिंग बेक्ड इनटू देम. दे हैव अ फिक्स्ड लेंथ, अनलाइक द वन हॉट वेक्टर्स जिनका साइज डिपेंड कर रहा था पूरी vocabulary के ऊपर. दे अलाउ फॉर मीनिंगफुल कॉम्पिटिशन सच एज फाइंडिंग द सिमिलरिटी बिटवीन वर्ड्स. बाय द वे, ये जब आप फिक्स लेंथ कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यू कैन डिफाइन अ सबसेट ऑफ योर vocabulary ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स जिसके ऊपर आप हर चीज को डिफाइन करना शुरू कर दें. सो लाइक अब आपकी मजबूरी नहीं है कि एंटायर वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हो. यू कैन शॉर्टन इट इफ यू वांट टू. मीनिंगफुल कॉम्पिटिशंस कर सकते हैं जिस किस्म की हमने देखी हैं. द डायमेंशनैलिटी कैन बी आर्बिट्रेरी स्केल्ड टू इनकॉर्पोरेट मोर मीनिंगफुल फीचर्स. अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना अगली वाली, ये अभी तक अप्लाई नहीं हो रही, इसको हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं. सो दीज ऑफन हैव टू बी लर्न. एक प्रॉब्लम ये है, वन हॉट तो खाली बस एक वैल्यू थी जो आपने एक जगह वन लगा देते थे. इनको सीखना पड़ता था और वो सीखने के प्रोसेस को भी हमने समझना है. Do we need anything from here? Not necessarily. ये सब कुछ आगे आएगा. Just the one lesson to take away from here is this. This is a really interesting saying. Nets are for fish. Once you get the fish, you can forget the net. हमारे लिए words are for meaning. Once you get the meaning, you can forget the word. So हमारे जो embeddings हैं, essentially it's a representation of the meaning. Once you have the meaning, the word itself is now less important. और ये चीज आगे जब हम बढ़ेंगे तो यही eventually हमें multimodality और multilinguality में लेकर जाएगी. Concept of a podium is important. The language is just the surface that you apply to it, and that's the basis of translation using embeddings. कि एक जबान के अंदर भी वो वही कॉन्सेप्ट है, दूसरे में भी वही कॉन्सेप्ट है. If they are in one place, we can just jump from one to the other and we get translation. All right. So word embeddings की बहुत सी किस्में हैं. There are many types.
There are three main types that we can learn. We won't do all of them, but there are frequency based embeddings, the most crude ones जो अब तक हम देख रहे हैं. There are prediction based static embeddings. इसका मतलब ये है कि you're going to train some sort of a neural network to learn these embeddings. ये हमारा अब अगला step आने वाला है. And then there are pre-trained language model based dynamic embeddings जो कि हमारी ट्रांसफॉर्मर के बिल्कुल फौरन बाद आएंगी, लाइक BERT या ELMO या GPT. ये वो embeddings होंगी जो कि हम किसी लैंग्वेज मॉडल के थ्रू सीख रहे होंगे. तो ये तीन तरह की embeddings हैं. ये ऑब्वियसली सबसे पावरफुल हैं, पर ऑब्वियसली यही सबसे ज्यादा computationally expensive हैं. So this is essentially where you spend the millions of dollars to get them in the first place. So सस्ती नहीं बनती, होती अच्छी हैं. ये इनका मसला है सिर्फ. और ये एक दफा जब ट्रेन हो जाएं तो बहुत सी किस्मों के प्रॉब्लम्स में यूज हो सकती हैं, लेकिन वो एक दफा जो ट्रेन हो जाएं इज द बिग क्वेश्चन. जी. सॉरी. या डिकोडर बिल्कुल बिल्कुल. खाली डिकोडर हमें बना देगा एम्बेडिंग. यस. वो भी ये हरकतें कर देता है. बिल्कुल. एसेंशियली इट्स जस्ट कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालना चाह रहे हैं. So once we get to the transformer, then you'll know what we mean by that. That is an interesting question. So encoder essentially is the thing which should be encoding, right? But a decoder can also encode, and an encoder would also decode. दोनों के बीच में एक बेसिक फर्क है, एक बेसिक assumption है. assumption का नाम ले देता हूँ, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाएगी. Encoder assumes it can see the future. Decoder assumes it just knows the past. So decoder only models just base their entire knowledge on what has already occurred, one directional. एनकोडर मॉडल्स एज्यूम बाय डायरेक्शनैलिटी. एक वर्ड की एम्बेडिंग में वो भी शामिल होता है जो उसके अगले वर्ड्स हैं, जबकि जीपीटी की एनकोडिंग्स को वो पता होता है जो पहले आ चुका है, ना कि वो जो बाद में आने वाला है. ये बेसिक सा फर्क होता है. ये मतलब है उस चीज का, डिकोडर ओनली और एनकोडर ओनली. ओके. इनमें से कुछ को मैं स्किप करूंगा. टीएफ-आईडीएफ की मैंने बात करनी है ब्रीफली. कोकरेंस मैट्रिक्स जो है वो मैं डील नहीं करूंगा. लेट मी स्किप दीज. बाय द वे, these are not being skipped for you. You need to read all of this, but this is just like too simple. So like ये बताने वाली इसमें कोई चीज नहीं है. आप फॉर एग्जांपल एक टर्म फ्रीक्वेंसी किसी एलिमेंट की खाली उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट है. लाइक आई डोंट नीड टू टीच यू दैट, राइट? सो इस किस्म की चीजें मैं बीच में से इग्नोर करता जाऊंगा. दिस इज योर बेसिक्स ऑफ टीएफ-आईडीएफ, लेकिन ये मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं इसके टॉपिक पे अभी जाऊंगा. Just going to stuff which is useful. या सो स्टैटिक और डायनेमिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. पिछली क्लास में इसकी कुछ बात आ गई थी. यहाँ से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई कांट सी हर नाउ, जिन्होंने सवाल किया था कि व्हाट इफ वी हैव दिस पॉलीसेमी रिलेशनशिप. सो वी हैव अ वर्ड व्हिच इज अ पॉलीसेमस वर्ड जिसके दो मतलब है. तो इसकी दो एम्बेडिंग्स होंगी या इसकी एक एम्बेडिंग होगी? वेल, now we are getting close to the point where we can start answering that question. For a simple embedding method, जिस तरह का हम word to vec वगैरह पढ़ने वाले हैं, जिसका आप पेपर पढ़ रहे हैं, वहां पर इसकी सिर्फ एक embedding होगी. और वो एक embedding vector अपने में average meaning of that word को encode कर रहा होगा. यानी जहां जहां वो word बैंक अगर river bank में भी appear होता है और वो बैंक अगर पैसों वाले बैंक में भी appear होता है, so the embedding has in itself the average information of the two contexts in it, just one embedding. That's a problem. That's why we call it a static embedding. When we're working with dynamic embeddings, just like your GPT and BERT वगैरह, वहां पे the embeddings are learned based on the actual context of a particular word. So a word does not just have two embeddings, it can have as many embeddings as there are contexts for that word in the text जिसके ऊपर आप उसको ट्रेन कर रहे हैं. So वहां पर अब कोई उसके ऊपर लिमिट नहीं लगी हुई है कि उसकी कितनी, जितनी कॉनोटेशंस हैं एसेंशियली वो उतनी जगह बार बार रिकर हो सकता है. वो बैंक यहाँ भी है, बैंक वहां भी है, बैंक वहां भी है, बैंक वहां भी है, बेस्ड ऑन द सेवरल कॉनोटेशंस जिसमें वो अपीयर हो रहा है. अच्छा, हम जिस चीजों को पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी आज ही शुरू हो जाएगा, वो ये है वर्ड टू वेक. सो वर्ड टू वेक के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करेंगे और वर्ड एम्बेडिंग्स को सीख रहे होंगे बाय प्रेडिक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट गिवन अ वर्ड, या ये कर रहे होंगे जिसको हम सीबो कहते हैं, या प्रेडिक्टिंग अ वर्ड गिवन इट्स कॉन्टेक्स्ट. इन दोनों के लिए हम एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे. जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा तो हम उसको फेंक देंगे और उसके अंदर से सिर्फ एक हिस्सा निकाल लेंगे जो उसकी हिडन लेयर होगी. वो हिडन लेयर जो है वो उस वर्ड की रिप्रेजेंटेशन होगी. So essentially you you run the blender, you create a blend
For finding out an answer, you're not interested in the answer, you're just interested in the blend. This is actually what we're going to do जब हम ये कर रहे होंगे और ये अभी थोड़ी देर में करते हैं तो it's going to answer many questions. जी 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 वो वही वही ले रहा है. सो पेपर के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन शायद जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपके पेपर के कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए. सो देर आर एक्चुअली टू डिस्टिंक्ट वेज यू कैन ट्रेन दिस. वो जो आप जो पेपर पढ़ रहे हैं उसका एक फॉलो पेपर भी है. सो वो मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा वो फॉलो पेपर की बेस के ऊपर होगा, लेकिन उसमें इसका जिक्र आएगा जो कुछ आप पढ़ रहे हैं. अच्छा, ओके. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फास्ट टेक्स्ट, जो एक्सटेंशन है वर्ड टू बैक की, लेकिन ये सब वर्ड्स पे ट्रेन होता है. सो वर्ड टू बैक इसेंशियली जो बना था ओरिजिनली वो फुल वर्ड्स के ऊपर बना था, यानी टोकनाइजेशन में assumption है कि वर्ड टोकनाइजेशन हुई भी है. Whereas fast text में assumption है कि सब word tokenization हुई भी है. You can as easily do a byte pair encoding और उसके through tokenization करके you can pass it through your word to vec and you can train your own sort of like a fast text. तो इस वजह से उसमें कोई उस तरह से अलग चीज नहीं है जो आपको सीखनी पड़े. ग्लव के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं. सो ग्लव कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ कोअकरेंस मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एंड प्रेडिक्शन बेस्ड मेथड. सो प्रेडिक्शन बेस्ड मेथड वही जो आप वर्ड टू वेक में सीखेंगे, और कोअकरेंस मैट्रिक्स एसेंशियली से इसके दो वर्ड्स कौन कौन से कोअकर कर रहे हैं. इट्स एसेंशियली रेशियो बिटवीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वर्ड पीस में सीखा था कि the fraction of times that the two words occur together divided by the frequency of the two words separately. So ये वाली जो चीज है ये हम इसमें साथ शामिल करते हैं to form glove embeddings, but this is just an overview. We're getting to it in a few minutes inshallah. Okay, ये सब जब जाके आएगा तो आ जाएगा. बर्ट जीपीटी हमने पढ़ना है और ट्रेन भी करना है. I have many of these slides just as notes ताकि आप लोग खुद पढ़ सकें. Okay, now we will start the TF-IDF. So TF-IDF हम दो रीजन से पढ़ रहे हैं. एक, it is still used a lot, especially in information retrieval. So it is, although from our perspective it's a legacy model now. ये अब कोई इतनी कटिंग एज चीज नहीं है. However, अभी भी जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप आगे काम करेंगे, सिस्टम्स यूज करेंगे, बहुत से सिस्टम्स के अंदर TF-IDF अभी ऑलरेडी यूज हो रहा है. TF-IDF वेरी इजी टू ट्रेन, इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत एफिशिएंट होता है और अच्छा खासा यूजफुल है. तो इस वजह से TF-IDF को हम क्विकली देख लेते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट TF-IDF इज एंड हाउ इट वर्क्स? ओके, हाथ जरा सही से खड़ा कर लो, मैं काउंट तो रफली कर सकूं. Half of my class, यानी okay, 25% of my class. Okay, so let's quickly talk about this. So TF-IDF के अंदर essentially हम दो चीजों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं. अब तक हम जितनी काउंट बेस्ड मेथड्स को देख रहे थे उसमें किसी भी टर्म को हम उसके नंबर, उसकी फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते थे कि जितना वो फ्रीक्वेंट है उतना वो इंपॉर्टेंट है. इसमें एक प्रॉब्लम आता था जो भी हम डिस्कस कर रहे थे. वो प्रॉब्लम ये था कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर फ्रीक्वेंट विदाउट बीइंग इंपॉर्टेंट. ओके, अब थोड़ा सा जरा इस बात को क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंट एंड इंपॉर्टेंट? द इज अ फ्रीक्वेंट वर्ड. If I tell you I have a document, it has the word the in it. Tell me the genre. It's not useful information. All genres have the word the in it. अगर ये अंग्रेजी का कोई document है तो. Whereas if I say it has the word, I don't know, drill, या electric in it, now we're getting some sense कि किस चीज की रफली बात हो रही होगी. अभी भी बहुत सी डोमेन्स हैं लेकिन द से बेहतर है, कहीं तो ले आया है. If I say tuberculosis, okay, this word is useful. It is telling me something कि यहाँ कोई medical related, कोई health related बातचीत हो रही है. ठीक है. If I say a word like, I don't know, neural network या neural खाली, it tells me something. So neural is a is an information rich word. The is not an information rich word if we are interested in tasks like, for example, document classification, genre identification, authorship attribution, या even next word prediction. ठीक है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाय द वे एक बात और ज़हन में रखें, जब हम ये बातें अक्सर कर रहे होते हैं ना तो हम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते हैं. इट डज नॉट मीन कि स्टॉप वर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. फार फ्रॉम इट, स्टॉप वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वुड यू लाइक द आउटकम ऑफ योर चैट जीपीटी अगर उसके अंदर जो है वो द इज एन आर और एंड ना से ही यूज हुए हुए हों? You won't even want to read it. So you need to get them right, but not for everything. कुछ चीजों में उसकी जरूरत नहीं होती. So TF-IDF essentially says find out the frequency of a particular word, that's the TF, term frequency, and then offset that by multiplying it by something called inverse document frequency. Now inverse document frequency आसान से words में उसका मतलब ये है
कि ये वर्ड, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ डेटा है जिसके अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं. सो इमेजिन वर्ड फाइल्स. तो इमेजिन मेरे पास स्टोरी बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टोरी बुक्स, एंड आई हैव अ वर्ड द. अगर मैं द के बारे में सवाल पूछता हूँ, इन 1 मिलियन स्टोरी बुक्स में से कितनों में ये वर्ड द आया है? कितनों में आया होगा अगर ये सब इंग्लिश की हैं? सब में, राइट? लेकिन कितनों में वर्ड रोमियो आया है? एंड वी गोना फाइंड अ वेरी फ्यू. So the document frequency for this term Romeo would be very low, and the document frequency for a word like the would be very high. We can use this information. We can use it, but we are actually interested in the inverse of it. कि अगर ये कम जगहों पर आया है तो ये ज्यादा important word है, ज्यादा meaningful word है. So we say inverse document frequency. So this is where the IDF comes from, the inverse document frequency. Now let's look at the formulas. So you have your TF. So एक वर्ड जिसके अंदर हम टर्म और एक डॉक्यूमेंट डी की बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर टीएफ आईडीएफ फाइंड करने के लिए वी फाइंड द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टर्म इन दिस डॉक्यूमेंट एंड द आईडीएफ ऑफ दिस टर्म अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सो और ये पीएमआई को भी रहने दें, पॉइंट वाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इसकी बात अभी करते हैं. ओके. सो जब हम टर्म फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं तो यूजुअली बिकॉज दीज टर्म फ्रीक्वेंसीज कैन बिकम रियली ह्यूज वेरी क्विकली, we sometimes do a little bit of the squashing of these terms. तो हम अक्सर इसके ऊपर ना ये अप्लाई कर देते हैं. So you can, इस चीज को हम आमतौर पे कहते हैं रॉ टीएफ्स. अगर जब भी कभी हम रॉ टर्म फ्रीक्वेंसीज के साथ डील कर रहे हैं तो we simply use them like that. अगर हम किसी भी तरह से उसको स्क्वाश कर रहे हैं, there are many squashing functions, this is just one of them. ठीक है. Okay. So 1 plus log base 10, 1 की क्या जरूरत थी? आइडिया 1 की क्या जरूरत थी? हाँ, पूरी चीज जीरो ना हो जाए. ओके. एंड इस जीरो को अलग क्यों किया हुआ है? If the count of this term in a document is greater than zero, we apply this, otherwise we apply this because इसका, sorry, because it's actually zero. और यहाँ पर अगर हम जीरो रखेंगे तो हमारे पास एक ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसके साथ हम डील कर सकें. ठीक है. ऑल राइट. सो नाउ वी हैव दिस स्क्वाश्ड फॉर्म. ये छोटा होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. लॉग कर दिया, इसे छोटा कर दिया हमने, स्केल डाउन कर दिया. ओके. So for example, ये हमारे पास, अच्छा अब now let's talk about the document frequency. So DF is the number of documents this T occurs in. ये याद रहे कि it's just the number of documents in which T is occurring, not the number of times that T occurs in these documents. It's not the count, it's just the count of the documents. जिसको हम collection frequency कह रहे हैं ना, collection frequency है कि वो चीज अकर कितनी दफा कर रही है. So for example, the word Romeo की collection frequency यानी TF is 113, let's say in Shakespeare dramas, but the document frequency is 1. Suppose there are 31 total dramas जो हमारे पास पड़े हुए हैं अलग अलग फाइल्स में, वो सिर्फ एक में अकर कर रहा है. ठीक है. So this is your collection frequency, this is the actual document frequency. Now जी. Yes, we need at least one document, and the definition of the document is completely arbitrary, up to us. As I said, it could be a paragraph, it could be a particular number of words, it could be an actual document. जहाँ पे, so for example, when you're doing authorship attribution, yeah, you're doing for example genre identification or something like, वहाँ पे ये actual documents होते हैं. So for example, मेरे पास ऐसे story books हैं, ये एक document है. Yeah, every chapter of the story book could be a document, and so on and so forth. So it's defined differently based on the problem that you're trying to solve. Okay. Sir. Yes. Yeah. Machine learning always has a standard answer for this question. Do whatever you want to do until you're improving the results on the final prediction task. जो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो ना, लेट्स से ऑथर से ही प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, जॉनरा से ही प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, ड्रामा से ही प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, जो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, एज लॉन्ग एज वो बेहतर हो रहा है, जैसे मर्जी डिफाइन कर लो. So now whatever faking you want to do, it will only help you अगर you're doing it in a way जिससे आपके final outcome बेहतर हो रहे हैं. That's what leads to essentially, जिस तरह से मैंने कहा है ना, if you think about it, this is the cross validation style of solving the problem. Just define the document in a way that optimizes your final outcome, which reduces the loss on the final outcome, on the final prediction.
You can think of it as a hyperparameter. Yes, it is a hyperparameter. जिस तरह अभी हम define कर रहे हैं कि document का size कुछ भी हो सकता है, it is a hyperparameter. Usually we don't tune it. Usually जिस वक्त की ML से ये वाले concepts निकल रहे हैं, उसमें हम ये चीज manually ही बताते थे कि कितना होगा. ठीक है, लेकिन there is nothing stopping you from tuning something like that. ओके, ऑलराइट. सो अब ये हमारे सामने कुछ टीएफ आईडीएफ लिखे हुए, इनफैक्ट जस्ट डीएफ और आईडीएफ लिखे हुए हैं, खाली यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी हैव एंड दिस इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच टर्म टी इज प्रेजेंट, और इसका भी हमने लॉग लिया हुआ है. सो नाउ इफ यू लुक एट इट, द वर्ड रोमियो, इसका आईडीएफ 1.57 है, एज अपोज टू द वर्ड गुड जिसका आईडीएफ 0 है. व्हाई इज इट 0? बिकॉज ये सब डॉक्यूमेंट्स में अगर कर रहा है तो दिस इज एसेंशियली n over n. So log based n of 1. So therefore good और sweet को इसने डिस्काउंट कर दिया, ये बेकार वर्ड्स हैं. और फूल और विट को इसने बहुत कम वेटेज दी, whereas रोमियो एंड फॉल्स्टाफ को इसने बहुत हाई वेटेज दी, बिकॉज इसके ख्याल में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आइडेंटिफायर्स हैं, which are मीनिंग कैरिंग या इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स. ठीक है, ऑलराइट. ये डॉक्यूमेंट की जो हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. सो यू हैव योर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास शेक्सपियर के वही 4 प्लेज, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर एंड हेनरी द फिफ्थ, जिसके अंदर बैटल, गुड, फूल और विट, वही वर्ड्स जो हम देख रहे थे. यू कैन सी these raw frequencies of the words and you can see these TF-IDFs of the words. Now, in fact, just stare at it for a few seconds and see if you find something interesting. Any interesting observation? Compare for each word the raw TF vectors and the TF-IDF vectors. By the way, these are also now vectors. So अब ये TF-IDF vectors बन गए हैं उसी के, बिल्कुल जिस तरह से हमने इससे पहले खाली TF vectors बनाए हुए. Any interesting observation? Good पूरा 0 हो गया. Good का vector अब कुछ भी convey नहीं कर रहा. It's a useless word. TF-IDF ने इसको discount out कर दिया. Look at fool. Fool has very little weightage because again ये सब में मौजूद था, सबके अंदर इक्वली मौजूद था, कुछ में कम था कुछ में ज्यादा था, लेकिन मौजूद सब में था. Whereas ये वाले वर्ड्स बैटल और विट, ये clearly, so they're not forming a uniform distribution. They're giving you peaks around certain documents. Therefore इसको उसने रखा है और इसको weight दिया है. Okay, all right, we are ready for the fun part now. So ये बेसिकली ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था आपका TF-IDF का. आप इसी तरह से पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं. उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है SLP3 के अंदर. there are 2 pages on it. मेरे ख्याल में उतना पढ़ लें तो आपके लिए काफी है. Do read it, you should know it कि ये होती क्या है. एसेंशियली बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट होती है जिस तरह से आपने वर्ड पीस के अंदर स्कोरिंग कैलकुलेट की थी, सिर्फ उसको लॉग कर लेते हैं तो उससे हमारे पास PMI आ जाता है. तो पढ़ जरूर लीजिएगा अपने तौर पर, आपको आना चाहिए, लेकिन मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि अलग से क्लास का टाइम हम इन चीजों पर यूज नहीं कर रहे. अच्छा जनाब, so let's start with the word embeddings. Okay, so this is your basic algorithm for training your word to vec. तो पेपर तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन मैंने रेफरेंसेस बाय द वे दिए में, हर एक के साथ आर्टिकल्स के रेफरेंसेस भी हैं, आगे जाके पेपर्स के रेफरेंसेस भी हैं, तो डू रीड द पेपर्स. बट लेट मी रीड आउट द बेसिक एल्गोरिथम. दिस इज द एल्गोरिथम जो आप लोग यूज कर रहे हैं. Describe the criteria of the neighborhood. For example, words occurring within a window of size k. Within the window, describe one word as a target while others as context words. तो अब आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मेरी विंडो का साइज 5 है, उसका पहला वर्ड टारगेट वर्ड होगा, या विंडो का साइज 10 है, उसका 5वां वर्ड जो है वो टारगेट वर्ड होगा. यू जस्ट नीड टू डिफाइन इट वंस. इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू डिफाइन इट. यूजुअली हम मिडिल वर्ड को चूज करते हैं अगर हम बाई डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट केयरिंग फॉर द बाई डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट. अब ये सारी चीजें I want to quickly gloss over. For example, मैं अगर ये window define कर रहा हूँ and I have word 1, word 2, word 3, word 4. If I always choose my target word as word 1, that means कि सिर्फ मेरे context word वो होंगे जो इसके right side पर होंगे. ठीक है? If I choose my target as W4 as my target word, then I'm just looking at the past of the word. But if I'm choosing, let's say, this word, then I'm looking at a bidirectional context. ठीक है, तो ये within the word to vec framework you have a lot of flexibility in terms of defining the neighborhood कि आप किस किस्म की चीजों को इसमें कैप्चर करना चाह रहे हैं to define the neighborhood. Okay, so you define this,
नाउ यू क्रिएट अ डेटा सेट ऑफ नेबर्स बेस्ड ऑन द कॉर्पस। तो अब आप अपने पूरे के पूरे डेटा सेट पे से ये विंडो गुजारेंगे और काउंट्स जमा कर लेंगे कि हर वर्ड के लिए, हर टारगेट वर्ड के लिए कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट वर्ड आपके पास आपको मिल रहे हैं। So you just find the data set of the context word. Now you train a model to predict the context using target words। अगर आप ये करें, so मैं target word दूं, for example मेरा target word था हमेशा word 2, तो जितने words word 2 के तौर पे चूज हुए हैं मैं वो इनपुट करूं और मुझे वो इनमें से किसी वर्ड को या इन सब वर्ड्स को आउटपुट में वो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ देना शुरू कर दे। ठीक है, ये दोनों तरह से इसको ट्रेन किया जा सकता है। दिस इज नोन एज स्किपग्राम। So skipgram essentially is based on predicting the context based on the target. We can do the reverse. We can predict the target using the context words, which is known as SIBO, continuous bag of words। ठीक है, अच्छा, तो अब ये होगा कैसे? सबसे पहले तो इस पहले स्टेप को देख लेते हैं। तो सपोज यहां पर मैं ये विंडो लेकर चल रहा हूं और मेरा टेक्स्ट है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जब मेरी विंडो स्टार्ट हुई, सपोज मैंने यहां से विंडो स्टार्ट की, पहली मर्तबा मेरा मिडिल वर्ड ये था, सो मेरा कॉन्टेक्स्ट वर्ड है द और मुझे दो पेयर मिल गए, द क्विक एंड द ब्राउन। जब मैंने विंडो आगे मूव की, नाउ मेरा टारगेट वर्ड है क्विक, मुझे पेयर्स मिल गए क्विक द, क्विक ब्राउन एंड क्विक फॉक्स। फिर मैं विंडो को यहाँ ले आया, ये विंडो टोटल 5 साइज की है, तो यहाँ पर ले आया, ब्राउन से मुझे मिला ब्राउन द, ब्राउन क्विक, ब्राउन फॉक्स, ब्राउन जंप्स, और यहाँ आके मुझे मिला फॉक्स क्विक, फॉक्स ब्राउन, फॉक्स जंप्स, फॉक्स ओवर। सो आई एम जस्ट फाइंडिंग दीज पेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? Once I have gone over the entire data set, by the way, this entire process is unsupervised। इसमें कोई लेबलिंग नहीं है, कोई ह्यूमन एनोटेटर नहीं है। Essentially what we call this, we call it a self supervised process, because जो right answer है वो भी ये खुद ही बता रहा है। So there is a right answer every time जो prediction करनी होगी, लेकिन वो right answer इसी में से निकल रहा है। So this is what self supervision looks like। Okay, so now that you have formed your data set, this method says either you do this, ये वो diagram है जो आपके पेपर में भी बनी हुई है। So for example, if we are giving as input the context words, word t minus 2, t minus 1, t plus 1 and t plus 2, you're predicting the word। So you want it to give you the embeddings of the word जो कि आप predict करना चाह रहे हैं, या फिर you give it a target word and you want to predict all the context words or maybe one context word or whatever। You can define this problem in numerous different ways। So ये आपकी अपनी मर्जी, मैं आपको भी दो तीन तरह डिफाइन करके भी दिखाता हूँ। Okay, suppose I'm making an assumption here for this neural network। By the way, fingers crossed, तुम लोगों को अपनी मशीन लर्निंग याद है, क्योंकि मैं कोई 36,000 दफा ये याद दिला चुका हूं कि मैंने कुछ रिवाइज नहीं करवाना। सो लिहाजा बैक प्रोपिगेशन, आई होप इट्स हियर इन योर हेड। ओके, सो हियर I have this neural network। By the way, what is this layer called? Input layer। What's this layer called? Hidden layer। And what's this layer called? Output layer। Good। How many layers do you see here? इस neural network की total layers कितनी है? 2। It's a 2 layer neural network। हम input layer को layers में count नहीं करते। ठीक है, ओके गुड, चले इतना तो याद है। ऑल राइट, सो यू हैव, सपोज यहां पर हम कर रहे हैं वन वर्ड देकर वन वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जब हम ये कर रहे हैं तो हम इसको स्किपग्राम या सीबो दोनों में कर सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि हमने कॉन्टेक्स्ट दिया है या टारगेट दिया है। ठीक है, तो वन वर्ड की बेस के ऊपर वन वर्ड की प्रिडिक्शन। लेट्स जस्ट लुक एट द सिंपलेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो जब वन वर्ड एज एन इनपुट प्रोवाइड करना है, सपोज जो चीज मैंने प्रोवाइड की है वो इनपुट वेक्टर उसका वन हॉट वेक्टर है। सो सपोज यहाँ ये वर्ड था एंट्स, और एंट्स का ये वर्ड वन खाली वहां पे हुआ है जहां पे एंट्स है। नाउ वी आर अज्यूमिंग अ वोकैबुलरी साइज ऑफ 10,000 and we are assuming embedding dimensions of 300। What does that mean? Whatever number of neurons you want to put in the hidden layer is what's going to be trained at the end as your embeddings। तो आपके हिडन लेयर का साइज आपने वहां पर कितना कुछ रखना है। ठीक है, ओके। सो अगर मेरे पास अब अगर तुम लोग मुझसे पढ़कर आए हुए, तुम लोगों को याद होगा कि मैंने ये एक चीज पे हमेशा बहुत एम्फसाइज किया है कि यू शुड नो द डिमेंशंस, कि किस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स की डिमेंशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस टेल्स यू द होल स्टोरी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। सो इफ यू जस्ट लुक एट इट हियर, इट्स अ फुली कलेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। सो आपके पास यहाँ 10,000 डिमेंशंस हैं, इसकी 10,000 वोकैबुलरी आइटम्स हैं, हर एक फुली कनेक्टेड है अगली लेयर के साथ। सो 10,000 इनपुट्स जा रहे हैं 300 न्यूरॉन्स के अंदर। हर न्यूरॉन में
ऑफ ऑल ऑफ दोस 300 न्यूरॉन्स कितने वेट्स होंगे? 10,000 वेट्स होंगे, राइट? 10,000 वेट्स की मैट्रिक्स से वो मल्टीप्लाई होकर सिंगल न्यूरॉन की वैल्यू बन रही है. सो देयरफॉर उस मैट्रिक्स को अगर मैं देखूं खाली, जो मेरी हिडन लेयर की है, दैट्स 10,000 इंटू 300. ठीक है, एवरीवन विद मी? 10,000 इनपुट्स आ रही हैं, हर एक न्यूरॉन में 10,000 जा रही है, 10,000 वेट्स हर एक के पास है, लिहाजा दिस इज 10,000 इंटू 300 न्यूरॉन्स. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके. अब जब ये मेरे पास आ गया, मैंने वर्ड प्रिडिक्ट करना है. वर्ड प्रिडिक्शन कैसे करनी है? मैंने एक पूरे का पूरा आउटपुट वेक्टर बनाकर देना है, जो लेट्स से थिंक ऑफ इट लाइक इट्स अप्रोक्सीमेटिंग अ वन हॉट वेक्टर. किसी एक जगह वो वनिश टाइप की चीज देना चाह रहा है. ठीक है, तो लिहाजा उसमें कितनी डिमेंशन होनी चाहिए? जितनी मेरी वोकैबुलरी है. मेरी वोकैबुलरी कितनी है? 10,000 है. मैं किधर से रहा हूँ? 10,000 इंटू 300 से. मुझे इनर डिमेंशन मैच करनी है. अगर मुझे नहीं भी मैंने सोचना ना कि कितने यहाँ से कनेक्शन बनने, आई कैन सिंपली जस्ट मैच दीज टू फाइंड आउट कि मेरी मैट्रिसेस का साइज कितना होगा. ओके, ये चीज समझ में आ गई? सो दिस इज माई रियली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क which is coming in for one word and as an output it's giving one word. अच्छा, अब इस किस्म की न्यूरल नेटवर्क से तुम लोग पहली दफा देख रहे हो. मैं इसके बारे में एक दो और बातें बता देता हूँ. So you take this one hot vector, you multiply it with the weights to get to this layer. Essentially इस लेयर में पहुंचने के बाद जो कुछ होगा उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ. यहां से जब आप यहां पहुंचेंगे ना, तो आप इस पूरे की पूरी चीज के ऊपर सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करेंगे. Why? Because initially all of these 10,000 neurons of the output layer are getting their own score. हर एक के पास अपना स्कोर है. एंड द स्कोर्स आर नॉट नॉर्मलाइज्ड अक्रॉस द न्यूरॉन्स. आपको याद है, ये हमने जिस पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे उसका आखिरी टॉपिक था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि अक्रॉस देम वी नीड टू नॉर्मलाइज सो दैट इट फॉर्म्स अ डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ डू यू फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन? यू डू अ सॉफ्ट मैक्स. सो व्हेन यू डू अ सॉफ्ट मैक्स से अब इनके अंदर कोई ना कोई चीजों की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है. एट दिस पॉइंट you can apply to it something like your cross entropy log loss function, जिसकी मदद से आपको पता लग जाएगा कि कितनी गलती की है और सही वर्ड प्रिडिक्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था. दिस इज योर स्टैंडर्ड वर्क फ्लो ऑफ एनी न्यूरल नेटवर्क. जनाब, सो 10,000 लेयर्स नहीं है, लेयर तो वही की है. या 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 बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, वो जो आप कह रहे हैं मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ. आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी डायग्राम ना बनाएं, इसकी मैट्रिक्स दिखाएं. होता वही है जो आप कह रहे हैं. इनमें से कोई भी लेयर सचमुच में लेयर नहीं है, ना कोई कनेक्शन सचमुच में कनेक्शन है. Essentially this is a 1 into 10,000 vector, this is a 10,000 into 300 vector, this is a 300 into 10,000 vector. Essentially these are just vectors, और हर वेक्टर के ऊपर आपको, हर वेक्टर्स के अक्रॉस आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा अपना सॉफ्ट मैक्स, बस सिर्फ ये. सो व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली, ये अलग अलग सेव नहीं हुए हुए. सो द कॉन्सेप्ट कि न्यूरॉन इज अ सेपरेट एंटिटी जो एक वेरिएबल में है, वो हमने तब छोड़ दिया था जब से हमने वेक्टराइज करना शुरू किया था. Yes. या वो अभी होगा ना, वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यही काम है ना, अभी करते हैं डिस्कस. हाँ हाँ, उसी पोजीशन पे वही वाला. तो देखो, हमने खुद से असाइन किया हुआ है हर डिमेंशन को एक वोकैबुलरी आइटम. एरन, आर्दवाक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टू जुलू एंड जू. ठीक है, सो लिहाजा इस पूरी चीज में किसी भी न्यूरल नेटवर्क में, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आप दोनों का पॉइंट है जब भी ये कंफ्यूज करने लगे, ऑलवेज रिमेंबर इस सब कुछ के आखिर में यू आर कंपेयरिंग दिस विद अ वेक्टर. सो सपोज, चले मैं आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ. लेट मी concretely do this for a very small neural network. Suppose my, इतना सा बना देता हूं मैं. So for example the word is the, but in fact let me take a non-stop word. So the word is, I don't know, black. So the word is black. This goes in to my hidden layers. It really goes like this, if you want to be exact about it. और ये सब आपको सबके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन आगे ऐसी तस्वीर मेरे पास होगी. अच्छा, उसके बाद यहां से इट्स गोना कम आउट. vocabulary साइज मैंने कितना रखा? 1 2 3 4 5 6. सो लेट्स से 1 2 3 4 5, एंड लेट्स से ये सब के सब जगह मुझे कनेक्ट करने हैं. the things I do for love.
एंड सो ऑन। ओके, जब ये सब बन गया, फर्ज करें ब्लैक के बाद जो वर्ड आना चाहिए था, जो पेयर मेरे पास था, वो बोर्ड था। ठीक है, एंड सपोज द बोर्ड वाज दिस वन। सो देयर इज अ रियल वेक्टर, there is the actual gold standard answer, which is the word board. And my softmax led to numbers like this. Whatever. It led to something like that. What I'm going to do at this point is I'm going to subtract this from this. I'll get an answer. अगर आपको याद हो, ये वो चीज थी जो आपके क्रॉस एंट्रोपी लॉस के आखिर में निकली थी. You just subtract one from the other. And that was basically the answer to that cross entropy loss जो हमने ड्राइव किया था न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर. ठीक है, सो essentially अगर आप यूं कहना चाहें, this is my gold standard, so this is my y hat, this is my y. I find the log loss between y hat and y. This gives me my loss, and now I start going back and updating all of these weights. सारे weights यहाँ, सारे weights यहाँ, ताकि अगली दफा जब ये वापस आए तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाए और बाकी नंबर छोटे हो जाए. So it's going to update everything. Within those updates, it's going to update the weights here. It's going to keep doing that. What it's doing at this point is it's learning the the embeddings for this word black to be able to predict the word board. ठीक है, so essentially ये process चलता चला जाएगा एक के बाद एक. अब अगेन अगर ये लेट्स से स्किप ग्राम था तो आप वर्ड टू कॉन्टेक्स्ट जा रहे थे, और अगर सीबो था तो कॉन्टेक्स्ट टू वर्ड आ रहे थे. दोनों अंदाज से ये हो सकता था. सो यू कीप डूइंग दैट अंटिल यू हैव मिनिमाइज दिस लॉस, मीनिंग के वर्ड सही प्रिडिक्ट होना शुरू हो गए, मीनिंग कि ये लेयर अब पूरी तरह तैयार हो गई. अब ये लेयर जितनी भी बड़ी थी हर वर्ड के लिए जो इसने वेट्स रेडी किए हुए हैं, क्योंकि रिमेंबर इसकी डिमेंशंस क्या है, 300 into 10,000. For each one of the 10,000 vocabulary items, it has an embedding matrix. It has a 300 dimensional vector stored for each vocabulary item. That 300 dimensional vector now has the embeddings. ठीक है सर, मैं एक एक करके लेता हूँ, ढेर सारे हैं. I should have an algorithm. Okay, जी. या वो दिखा देता हूँ आपको. इसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर अगली स्लाइड पे. पेयर्स बदलते रहते, आपने पूरे पे गुजारना है, पूरी वोकैबुलरी पे एक एक करके गुजारना है आपको, जितने पेयर्स किए. तो आपका ईपॉक किसी चीज के ऊपर तो चल रहा है, बेसिकली आप सब के सब वर्ड्स के ऊपर एक एक दफा करके इसको ट्रेन करेंगे. या ये दरमियान वाला जो है ना 10,000 into 300, इसकी मैं आपको भी शक्ल भी दिखाता हूँ. अच्छा नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये दरमियान वाला 10,000 into 300 लेफ्ट वाला. जी, we can do it either way. It doesn't make a difference. We usually go over the entire vocabulary once and then the entire vocabulary the another time and then we keep going like that. We can do it both ways, क्योंकि अगर एक वर्ड पे खाली करने लगेंगे तो उस वर्ड की एम्बेडिंग ट्रेन हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही. So we simultaneously do over the entire thing. Right. देखिए अगर आप अगला वर्ड दे रहे हैं तो वो उस 300 into 10,000 के किसी और वेक्टर को छेड़ रही है. देखें, ओके, लेट मी, उसकी डायग्राम तो आगे आनी है. लेट मी एक्चुअली, बल्कि इनफैक्ट लेट मी जस्ट ब्रिंग अप दैट डायग्राम जिसका मैं जिक्र को 3 दफा कर चुका हूँ. ओके, सो दिस इज योर हिडन लेयर, these are your 300 neurons, and these are the 10,000 words जिनकी आप बात कर रहे थे. Here you have the embedding for the word a, here you have the embedding for the word an, Aaron, Ardwak, and so on and so forth, like boy and baby and woman and Zulu and zoo. सबकी embeddings यहाँ पे तैयार हो रही हैं. अच्छा, अब एक और काम जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, होप आई हैव अ डायग्राम फॉर दैट, या आई हैव अ डायग्राम फॉर दैट. सो ये यहाँ पर ऑपरेशन हो क्या रहा है, what is this one hot vector doing? I'm just showing this on a very small scale here. So suppose ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया. So मेरे पास यहाँ पर
this is a 1 into 1 2 3 4 5. So ये 5 into 1 है मेरे पास, so 1 into 5 है इनफैक्ट, और ये 5 into 3 है मेरे पास, ठीक है. This is my one hot vector. What does the one hot vector actually do? It looks up the embedding of the word it's interested in. Think of it like this. Let me clear this. Let me draw it just like that. So 1 into 10,000 means something like this. एक 1 लगा हुआ है और बाकी सारे 10,000 zeros हैं, ठीक है. And then 10,000 into 300 means 10,000 rows, and then these columns are 300. When the two things, so when this gets multiplied with this, so the inner dimensions match, they can multiply. When this gets multiplied, essentially ये one जिस जगह पर लगा हुआ है, let's say this is the dimension number 37, it will just pick up, go to dimension number 37 and pick up the entire 300 dimensional vector for this and give this as the output. This is what this matrix operation is doing. If you want to be convinced more of this, just look at this small example. This thing just picked out this entire vector and took it out. So your one hot vector is just a lookup mechanism. It's doing nothing more. It's just a lookup. It's looking up the right vector. So in fact, आपको जब किसी बुक में ये चीज मिले ना कि okay, just provide the right embedding here and do nothing else, कोई one hot vector ना लगाओ. Essentially वो ये कह रहे हैं कि बस ये embedding खुद उठा कर दे दो. So there are usually two ways of visualizing this. Either you use a one hot vector or you just look it up, search for it and provide it as an input. ग्राहम के लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे उन्होंने इन दोनों तरीकों के ऊपर इसको डिस्कस किया हुआ है. जी. Word to back is a static embedding. वो भी कहाँ से आ गया? Yes. Yes. ओवर अपडेट होगी. सो बेसिकली क्योंकि वो है ना stochastic gradient descent है, it's slowly nudging all the values of the embedding. Initially you initialize all embeddings, this and that. किस तरह करते हैं? You tell me. Randomly. All values of the neural network weights will be initialized randomly. So random values इसकी भी हैं, random values इसकी भी हैं. Initially सब random है. Initially उसने उठा कर एक दफा उसे ब्लैक बोर्ड मिला, एक दफा ब्लैक बेयर मिला, एक दफा ब्लैक मार्कर मिला, एक दफा ब्लैक समथिंग मिला, चलते गए. वो सब के सब वर्ड्स इंपैक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल जो एम्बेडिंग है वो नज होती जा रही है. Right. So the only way we can ensure this is if giving black is able to predict all of those outcomes with a decent enough loss. So you just define a minimum loss कि जी यहाँ तक, again stochastic gradient descent, यहाँ तक पहुंच गए तो उसके बाद हम करना बंद कर देंगे. सिर्फ वाहिद ये है इसका. ठीक है जी. कौन सी रो? This is the one hot vector. This is this big matrix. I've just drawn a smaller version of it. ये मेरी vocabulary है, ये मेरी 5 words की vocabulary है. So ये मेरे पास वो 5 words के 5 vectors पड़े में. ये मेरे first word का vector है, ये second का, ये third का, fourth का और ये fifth का. जब मैं इस one hot vector से ये multiply करता हूँ तो मुझे जवाब में खाली ये look up करके उसकी embedding निकाल के दे देता है. ठीक है. मैं असाइनमेंट नहीं करवा रहा आपकी, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कितनी डिटेल में जाना है. अच्छा ठीक है जनाब. सो एंड देन फाइनली when you go here you just apply softmax to the output layer and then you're done. You find the loss, you propagate back the loss and you keep doing this. जी. नहीं, सो इस वाले मॉडल के अंदर हमेशा एक हिडन लेयर होगी. अगर आप ये वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक हिडन लेयर होगी. द इनपुट लेयर कैन हैव मोर एम्बेडिंग्स जब आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट वर्ड से प्रिडिक्ट कर रहे हैं. द आउटपुट लेयर कुड आल्सो हैव मोर एम्बेडिंग्स अगर आप आउटपुट के अंदर मल्टीपल वर्ड्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं. वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ये बीच की जो लेयर है ना वो एक ही होगी. इतने सारे सवाल, बस मैं 3 लूंगा आपकी क्योंकि कई सारे सवाल वो आ रहे हैं जो मैंने आगे पढ़ानी है चीज. जी.
ये वो वही तो बताने लगा हूँ, कर रहा हूँ ना, इसलिए तो देखो एग्जैक्टली इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो मुझसे पूछ रहे हो कि वो क्यों लिखा हुआ है, बता चुका हूँ। ओके, सो दिस इज कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव because you're having to go through these huge matrices again and again and again, thousands or maybe millions of times until they converge. ये पूरा प्रोसेस अच्छा खासा एक्सपेंसिव है ट्रेनिंग का। तो इस प्रोसेस का एक ऑल्टरनेट प्रोसेस है विच इज शॉर्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका फुल वर्जन दिखा दूं। दिस इज योर स्किपग्राम मॉडल, ये इससे अगले पेपर के ऊपर बेस्ड है। दिस इज योर स्किपग्राम मॉडल जिसके अंदर आप एक वर्ड से तीन वर्ड्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। So basically, you're providing one word as an input and you're predicting three context words based on that. So now what you can see here, so this is V into n dimensional. Your n dimensions is the number of embeddings जिसमें आप interested हैं. So by the way, इस चीज से अपने आप को खूब कंफर्टेबल कर लीजिएगा पेपर पढ़ने के बाद। आपको इस तरह के डायग्राम देखकर ये चंद सेकंड में नजर आ जाना चाहिए कि एम्बेडिंग्स का साइज कितना है, वोकैबुलरी का साइज कितना है, नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेडिक्टेड कितने। दीज आर लाइक द फर्स्ट लेवल क्वेश्चंस जो आपको चंद सेकंड के अंदर फौरन नजर आ जाने चाहिए। सो माय वोकैबुलरी साइज इज वी, माय नंबर ऑफ एम्बेडिंग लेयर्स, एम्बेडिंग्स हैं कितनी बड़ी, मेरे पास n डिमेंशनल एम्बेडिंग्स हैं। और अगेन आउटपुट के अंदर के मैं थ्री वर्ड्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो जितने भी कर रहा हूँ 3 into v मेरे पास आउटपुट के अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं। और मुझे यहाँ पर तीन सॉफ्ट मैक्स करने पड़ेंगे, एक इस पे सॉफ्ट मैक्स होगा, एक इस पे सॉफ्ट मैक्स होगा और एक इस पे सॉफ्ट मैक्स होगा। अगर मैं इसका रिवर्स कर रहा होता, आई होप आई हैव इट, यस, अगर मैं इसका रिवर्स कर रहा होता इस किस्म की कोई चीज जो कि सीबू के अंदर होती है, तो यू हैव दीज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वन, कॉन्टेक्स्ट टू एंड कॉन्टेक्स्ट थ्री। और इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी का साइज क्योंकि वी है तो दिस इज वी इंटू एन, एन साइज की एन डिमेंशंस की मैं एम्बेडिंग ट्रेन कर रहा हूँ और आउटपुट के अंदर मैंने एक वर्ड खाली प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पर अक्सर आपको एक चीज मिलेगी, because continuous bag of words, originally the word comes from the idea of bag of words, yani some kind of a summation. So some books even write this as कि जैसे यहाँ पर आपने खाली इसको sum किया है, essentially that sum is also going through the same weights. So basically यही picture आपने अपने जहन में रखनी है कि you're just training this layer, ठीक है। तो ये जितना कुछ भी हमने देखा है ये expensive है क्योंकि we're dealing with huge vectors again and again and again. So there is a much more efficient way of solving the same problem जो कि इन्हीं भाई ने जिनका पेपर आप पढ़ रहे हैं उन्होंने इसके बाद वाले पेपर के अंदर उसको एक्सप्लेन किया। ओके, this is the other criteria, and this is basically contrastive learning. So now what we are saying is, और अब गौर से सुने क्योंकि ये बात आपको समझ आना जरूरी है। We are saying, okay, describe the criteria for neighborhood पहले की तरह, for example words occurring within a window of size k, within the window describe one word as the target word while other is a on context word, कोई नई चीज नहीं है। But however sample the corpus randomly to discover non neighbors। हम करना क्या चाह रहे हैं? अब तक हम कह रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है यूज टारगेट वर्ड्स टू प्रिडिक्ट कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स टू प्रिडिक्ट टारगेट। अब तक हम ये कह रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्टिव, अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं करो। ऐसा करते हैं, दो लिस्ट बनाते हैं, ये मेरे सचमुच के नेबर्स हैं, ये मेरे सचमुच के नॉन नेबर्स हैं। लेट मी जस्ट ट्रेन अ कंट्रास्टिव लॉस दोनों के बीच में कि मैं अपने नेबर्स के करीब हो जाऊं और नॉन नेबर से दूर हो जाऊं। इसेंशियली वर्ड ब्लैक उन सारे वर्ड्स को अच्छा प्रेडिक्ट करता हो जो ब्लैक के नेबर्स हैं और उनके बारे में बहुत बुरा स्कोर देता हो जो उसके नेबर्स नहीं, ठीक है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारा वो सारा ह्यूज न्यूरल नेटवर्क एक सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा। वी आर एसेंशियली सॉल्विंग नाउ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हाउ? वी आर सेइंग गिव मी एज एन इनपुट टू वर्ड्स and the network is just supposed to say yes or no, neighbor, non-neighbor, neighbor, non-neighbor. What does that mean? अगर मैं ये कर दूं तो मेरी फाइनल लेयर के अंदर कितनी न्यूरॉन्स होंगी? I can live with one, but I can also live with two. अगर मैं इसको उसी तरह करना चाह रहा हूँ जिस तरह अभी करके चल रहा हूँ सॉफ्ट मैक्स के थ्रू, तो दो इनपुट्स रख लें, वन और जीरो उसके अंदर आ रहा हो, या खाली एक रख लें जो कि जीरो वन दे रहा हो, doesn't matter. It will not have 10,000 neurons. It will have ये big matrix जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। So essentially, all I want is to store the embeddings, initially randomly initialized embeddings of the words and their contexts, including some neighbors and some non-neighbors. जो ये टैग हुए हैं कि कौन neighbor है कौन non-neighbor है। So now essentially what I need to learn is somehow automatically create this data set of neighbors जो हमें बनाना आता है and non-neighbors जो हमने अब तक नहीं बनाया, वो कैसे बनाए देखें। अब उसका चलें आप बताएं, इसको छोड़ें।
खुद से सोचकर बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हियर इज अ वर्ड WI, इस वर्ड का मुझे नेबर्स चाहिए, आपने कहा अच्छा इसके इर्द गिर्द विंडो बना लो 10 साइज की, उसको स्लाइड करते रहो, जब जब ये वर्ड मिले, जो जो वर्ड उसके नेबरहुड में है ये उसके नेबर्स, ये हमें आता है। हाउ कैन आई फाइंड द नॉन नेबर्स फॉर दिस वर्ड? हाउ कैन आई फाइंड द रियल नॉन नेबर्स फॉर दिस वर्ड, वो वर्ड जो कभी इसके नेबर्स नहीं है? एक इसका सही जवाब होगा, एक इसका बेहतर जवाब होगा। लेट्स सी व्हिच वन डू आई गेट फर्स्ट। जी। इन द vocabulary, इन द कॉर्पस या vocabulary? कॉर्पस ना? कॉर्पस तो डेटा सेट है, डेटा सेट में नेबरहुड होगी ना, vocabulary में तो डेटा सेट नेबरहुड नहीं होगी। सो यू गो ओवर द एंटायर डेटा सेट, पूरे डेटा सेट के अंदर जाकर आप देखेंगे जहां जहां वो वर्ड अकर करता है, आप ये देखेंगे वो कौन से वर्ड्स हैं जो कभी उसके नेबर नहीं रहे। ओके, दैट्स somehow the more cautious way of doing this. अच्छा, we don't do this, we do it slightly differently. Yeah, that's the same cautious approach. You take all neighbors, you find all actual neighbors, and then you take the entire vocabulary, और उसमें से जो जो इनमें नहीं है उसको उसे कह दें कि नॉन नेबर्स हैं। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये उससे भी ज्यादा, ये कॉशियस तो है लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है, ये ऐसे नेबर्स भी ले आएगा जो मैंने डेटा सेट में कभी देखे ही नहीं है। बिकॉज माई vocabulary does not need to be formed based on this data set. The vocabulary could be a pre-existing vocabulary. So suppose vocabulary में 6 million entries थी, लेकिन जिस डेटा सेट पे मैं ट्रेन कर रहा था उसमें 600,000 एंट्रीज थी। तो अब वो 600,000 यूनिक वर्ड्स में से जो बाकी जितने भी हैं वो मैंने कभी नहीं देखे हैं, लेकिन जब आपके तरीके से मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे नॉन नेबर्स भी दे देगा जो मेरे डेटा सेट में है ही नहीं। ठीक है, ओके। अब इस कॉशियस अप्रोच को थोड़ा सा बेहतर करते हैं, कोई मुझे ओके कोई इजी गोइंग अप्रोच दें इस चीज की, और मैं क्या कर सकता था नॉन नेबर ढूंढने के लिए? ओके, आई लाइक दैट। सो जितनी मेरी कॉन्टेक्स्ट विंडो है ये कह रहे हैं उससे अगला उठा लें। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, एक बायस क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर मैं जरा बड़ी विंडो रखता तो वो नेबर होता, तो द लाइन बिटवीन नेबरहुड एंड नॉन नेबरहुड इज वेरी अब्रप्ट। ओके, we can, and now pay attention, we can say okay, randomly sample from the entire corpus a word। अच्छा, इसमें रिस्क क्या है? हो सकता है वही वर्ड मिल जाए। ये चीज कितनी प्रोबेबल होगी कि वही वर्ड मिल जाए? अगर वो स्टॉप वर्ड है तो फिर तो जरा डिसेंटली प्रोबेबल है। अगर आम सा वर्ड है तो ये काफी कम प्रोबेबल है। अच्छा चलो इस पे लिमिट लगा दो, वो वर्ड खुद नहीं हो सकता। चलो इसको अलग कर दिया। अब फर्ज करो कोई, अब मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, बस वो वर्ड नहीं हो सकता खुद जिसका मैं नेबर ढूंढ रहा हूँ। अब क्या पॉसिबिलिटीज है? अब वो नेबर हो शायद दोबारा कभी किसी जगह उस वर्ड का, ये एक रिस्क है। अच्छा, ये रिस्क कितना बड़ा है? बहुत कम, because we're talking about thousands of words here। तो ये क्या probability, we can actually find out this probability, we can calculate this probability कि ये वाला vocabulary item जो है इसके किसी और विंडो में से किसी वर्ड का रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आने के कितने चांसेस हैं। we can quantify this, it's going to be a very small probability। does it have any benefit? Does this approach, okay, so now we have two approaches, I hope you're closely following because I don't have a slide for this, we're just doing it with my hands। So we have these two approaches. One, I randomly select from the entire corpus for a non-neighbor। Two, I carefully select from the entire corpus a non-neighbor which is certainly a non-neighbor, किसी भी context window में वो occur नहीं कर रहा उस word की। Let's say for the word black, उस black की किसी context window के अंदर वो occur नहीं करता। एक ये है versus ये है कि भाई इस window में occur नहीं करता ना, बस ठीक है आप कहीं से भी उठा लो। इस second approach का कोई फायदा लग रहा है? फास्टर तो है, फास्टर तो है, और वो तो ठीक है, और कुछ? पिछली क्लास में बड़ी मेहनत की थी मैंने इस टॉपिक के ऊपर, अभी तक तुम लोगों के जहन में खुद से नहीं ये चमक रहा। फास्टर, जैसे उन्होंने कहा, एग्रीड, और क्या? यूर क्लोज, थिंक मोर, लेट मी रिपीट। वर्ड ब्लैक है, ये इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है, इसमें से मुझे इसके नेबर मिल गए, मुझे नॉन नेबर चाहिए। नॉन नेबर्स के लिए मैं कह रहा हूं एक अप्रोच ये है, जहां जहां मेरी पूरी कॉर्पस में वर्ड ब्लैक आया है उसके इर्द गिर्द कॉन्टेक्स्ट विंडो बनाओ, उसके अलावा जितने वर्ड हैं कॉर्पस में उनमें से कहीं से रैंडमली वर्ड उठा कर ले आओ। इससे मैं इंश्योर कर रहा हूं कि जब मैं वर्ड ला रहा हूं वो यकीनी नॉन नेबर है ब्लैक का, जब भी कभी ब्लैक का कर होता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं ये कह रहा हूं नहीं,
ये वर्ड ब्लैक इस कॉन्टेक्स्ट विंडो में जो वर्ड नहीं आया, इसके अलावा जहां कहीं कोई भी वर्ड आया है ब्लैक के अलावा, खुद वर्ड ब्लैक नहीं उठाना, कोई भी वर्ड उसके अलावा उठाकर ले आओ। इस सेकंड अप्रोच में कोई फायदा है? ओके, थिंक अबाउट इट योरसेल्फ, दिस इज बेटर फॉर पॉलीसेमी। इस कॉन्टेक्स्ट विंडो में ब्लैक किस मीनिंग में अकर, किस सेंस में अकर कर रहा है, बाकी कॉन्टेक्स्ट विंडोज में हो सकता है वो किसी और सेंस में अकर कर रहा हूं। I am not restricting it based on all context windows because maybe other context windows have other senses of black. ठीक है, so वो उसके नेबर्स तो हम पकड़ ही रहे हैं क्योंकि हमने उन सारे ब्लैक्स के जाकर नेबर पकड़ने हैं। नॉन नेबर के अंदर भी इस बात का आप ख्याल रख रहे हैं कि जहां मर्जी से उसको उठा लो, हो सकता है उस ब्लैक के अंदर जो नेबर हो वो इस ब्लैक के लिए नॉन नेबर। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग एसेंशियली। उस ब्लैक बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें नेबर हैं वो ब्लैक मार्कर के केस में या ब्लैक बेयर के केस में नॉन नेबर कंसिडर हो। दैट्स परफेक्टली फाइन। सो इट्स मोर एफिशिएंट and it's more friendly towards polysymmetry. I'll entertain two questions. आप बड़ी देर से हाथ खड़ा कर। Yes, that too. Overfit नहीं कर रहे, लेकिन overfit to a particular perception या sense of the word भी नहीं कर रहे। कैसे? Combine से क्या मतलब है? Define? नहीं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एसेंशियली एक में आप कह रहे हैं कि बी सो कॉशियस के ऐसा वर्ड नॉन नेबर लाओ जो उसका कभी भी नेबर ना रहो, और दूसरे में आप कह रहे हैं उसका ऐसा नॉन नेबर लाओ जो अभी इस वाले इंस्टेंस का नेबर नहीं, बाकी और किसी का हो सकता है विद अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी। यस, बहुत कम है, लेकिन एसेंशियली नाउ यू ट्रीटिंग नेबर्स एंड नॉन नेबर्स इन द सेम वे। एसेंशियली यूर सेइंग, देखें आप सोचें जरा, मैं कह रहा हूँ ये वर्ड ब्लैक है, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, इसके यहाँ कुछ नेबर्स हैं, इसके नॉन नेबर्स कौन है? एक तो ये हो सकता है इसके नॉन नेबर्स वो सारे वर्ड हैं जो जब भी ब्लैक किसी भी सेंस में यूज होता है उसके नेबर्स के अलावा जो बाकी वर्ड होते हैं। दिस इज मोर हार्शर पेनल्टी। अब ऐसी चीजों को नॉन, यानी ब्लैक बेयर के नॉन नेबर्स भी ब्लैक बोर्ड के नॉन नेबर पे अप्लाई हो रहे हैं जबकि नहीं होने चाहिए। अब मैंने दूसरे उसमें इस चीज को रिलैक्स कर दिया, मैंने कहा कि नॉन नेबर के केस में भी वैसे ही डील करें जैसे नेबर के केस में करते हैं। अगर आपने ब्लैक बेयर के नेबर्स पकड़े हैं तो उसके अंदर जब नॉन नेबर्स पकड़ रहे हैं तो उसमें हो सकता है ब्लैक बोर्ड के नेबर्स भी इसके नॉन नेबर बन सकते हैं। दैट्स एसेंशियली व्हाट वी से। जी, या बिकॉज इट्स अ नॉन नेबर, दैट्स परफेक्टली फाइन। अनरिलेटेड वर्ड इज स्टिल अ नॉन नेबर। इनफैक्ट विल ओवर सैंपल इट। सो अभी हम ये देखते हैं। चलें, अब हमें नेबर और नॉन नेबर समझ में आ गए। इस नेबर नॉन नेबर को पकड़ने को हम नेगेटिव सैंपलिंग कहते हैं। नेगेटिव सैंपलिंग मींस नॉन नेबर्स पकड़ना जो इसके नेबर्स नहीं। ठीक है, सो क्रिएट अ डेटा सेट ऑफ नेबर्स एंड नॉन नेबर्स बेस्ड ऑन अ कॉर्पस। नाउ ट्रेन अ मॉडल टू प्रिडिक्ट जस्ट यस नो फॉर द नेबरहुड क्वेश्चन। आपने सिंपली यस नो प्रिडिक्ट करवाना है। वो अब देख लेते हैं कैसे होगा। आपका एक वर्ड होगा, उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड होगा। सो यू गिव अ टारगेट वर्ड एंड अ कॉन्टेक्स्ट वर्ड, यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरमीडिएट लेयर जिसको अभी हम देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। देन इस इंटरमीडिएट लेयर की बेस के ऊपर यू गोना सिंपली अप्लाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर क्लासिफाइंग दिस पेयर एज अ नेबर और अ नॉन नेबर। And because you're again doing your gradient descent on this, the gradient descent will try, अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई ना, आगे का सारा math is going to be puny for you. So all you're trying to do is you want words and their real neighbors to have similar embeddings and words and their non-neighbors to have very different embeddings. So you're pushing the non-neighbors apart, you're pulling the neighbors close. That's it. इतनी सी बात सिर्फ, अगर ये सब, और how does the stochastic gradient descent does that? It simply takes your gradients and subtracts them or adds them to the weights. तो जब वो सब्ट्रैक्ट करता है तो एक डायरेक्शन में मूव करता है, ऐड करता है दूसरे में करता है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि नेबर्स के केस में वो करीब करीब मूव करता जाए उन्हें सब्ट्रैक्ट कर करके, और नॉन नेबर्स के केस में उन्हें पुश करता जाए एक दूसरे से दूर। ठीक है, अब इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सवाल थोड़ी सी देर के लिए रोक लो। ओके, लेट्स डू अ डीपर डाइव। ओके, so we've already seen that. अब अक्सर स्लाइड्स में ना you're gonna see some repetition because ये मैं अक्सर इनके लेक्चर बाउंड्री बीच में आ रही होती है तो वो एक थोड़ा सा रिवीजन डाला हुआ होता है पिछले लेक्चर का। ओके, so now let's concretely do this. Suppose हम प्लस माइनस टू वर्ड की विंडो लेकर चल रहे हैं। अब मैं आपके सामने वही सैम्पलिंग एक दफा दोबारा करने लगा हूं ताकि हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। Suppose we have this is by the way from your book SLP3. Let's say कोई एक रनिंग टेक्स्ट है, लेमन, अ टेबलस्पून ऑफ एप्रिकॉट जैम, अ पिंच एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर फर्ज करने की टारगेट वर्ड डिफाइन कर दिया और ये मेरी पूरी विंडो थी। तो ये मेरे सारे के सारे नेबर्स हैं। सो आई कैन जस्ट फाइंड फ्रॉम दिस दीज
पेयर्स जो मेरे पास निकलना शुरू हो गए। एंड नाउ व्हाट आई वांट इज कि इन पेयर्स को एक हाई पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी मिल रही है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव गिवन वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, और इसकी जो ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी होगी कि नेबर नहीं है, इट्स जस्ट गोइंग टू बी 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो now we know that two vectors are similar if they have a high dot product. अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि वेक्टर्स के साइज सेम हो गए हैं, we don't actually need the cosine. So you will see that in practice हम कोसाइन कोसाइन की पूरी कहानी करने के बाद जब एक्चुअली यूज कर रहे होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, बिकॉज द वेक्टर्स आर ऑफ द सेम साइज, एंड अक्सर वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मैक्सेस। ये वही वाली सारी कहानी है कि you don't need the actual number, you just need to compare two things. Okay, so that's why the similarity of two words is just proportional to the dot product. We just need to normalize. अच्छा हाँ, अब मसला ये है कि ये जो चीज आपको मिल रही है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इवन अगर मैं इसको कोसाइन कर भी दूं तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। So one way to convert the similarity of two vectors into a probability is to pass it through our favorite sigmoid. So if you pass it through the sigmoid, your sigma w dot c is going to be a probability that these two are similar words. Okay, so हमारे पास एक probability आ जाएगी. So let's do that. So this is the similarity. Turn this into a probability. We'll just pass it through the sigmoid. So the probability of positive neighborhood given these words w and c is simply sigma cw is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus cw. ठीक हो गया? Okay. What would be the other one? खुद से ड्राइव करें. Find out 1 minus, find this out. Take 2 minutes. Calculate its value. बहुत आसान है, सोच से भी ज्यादा आसान है तुम लोगों की. You want to solve it? Just put sigma minus CW here, sigma CW here, sorry, and then solve it and see what it gives you. It gives you this. So there's 1 minus this, which is equal to this. So we have this relationship. You can easily work this out. So this just comes out to be 1 over 1 plus e raised to power c dot w. ठीक है, तो आपके पास दोनों साइड्स की प्रोबेबिलिटीज आ गई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेबरहुड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन नेबर. ठीक है, ओके. Now, so this is for one context word, but we have lots of context words in the window, so we can assume independence and just multiply them, all of them. So we get this. So the probability that two things are actual, so for example, for this word, this is an actual context. With the independence assumption, it comes out to be this. हम सबकी probabilities को यहाँ पर आपस में सबके सिग्मास को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स के. एंड अगर हम इसको लॉग डोमेन में ले जाएं, आखिरी लेक्चर ऑफ नाइव बेस जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि इसको हम लॉग में क्यों लेकर जाते हैं, एक क्योंकि यहां पर बड़े आराम से हमारे पास अंडरफ्लोज आ सकते हैं, और दूसरा हमें सिर्फ एडिशंस करनी पड़ती, so all multiplications become additions. So we just converted into a summation. So the probabilistic classifier given a test target word and its context window of L words C1 to L estimates the probability that W occurs in this window based on similarity of W embeddings to C1 to L embeddings. ठीक है? To compute this, we just need embeddings for all the words. So this is, अभी फौरन उठने का ना सोचना, मुझे ये बात मुकम्मल करने दो, वरना तुम लोग के असाइनमेंट के ऊपर जो फवायद होने हैं वो नहीं होंगे. That's a good motive, right? We should do that in every class. Okay, so here we have all of the target words, which is the V target words, represented by whatever number of embeddings we want, dimensions of embeddings जो हमें इसकी चाहिए. So for example, ये D dimensional embeddings हम बनाना चाह रहे हैं, हमारी मर्जी है. When you start this process, you can initialize this randomly. You can just have this association कि पहला word ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और आखिरी ये है. These actual values are random in the beginning. कुछ भी initialize हो सकती हैं. ठीक है? Okay, so you start with noise essentially. So these are your W, these are your words, target words जिनको हम W कहेंगे. These are your context words. So essentially now you can train it using the method जो आपने सीखा था. अब negative sampling. So these are your positive examples. For each positive example, we can grab k negative examples. So for example, ये apricot teaspoon actual neighbor है. For this, we can bring in one non-neighbor. Okay. Should we bring in just one non-neighbor? No.
each word in my corpus has more non-neighbors than actual neighbors. Just this is how language works. हर word के ज़्यादा possible non-neighbors होते हैं, the words that don't go with it, than the words that go with it. If you want to model that, you go for a bigger K. K here is the number of negative samples that you want to grab. So for example, यहाँ पर हमने थ्री कितने 5 उठाए हुए, 3 उठाए हुए, कितने उठाए हुए, जितने भी उठाए हुए. सो एप्रिकॉट के लिए मैंने 4 ये उठाए हैं, तो 8 ये उठा लिए. सो 2 हर एक के लिए मैंने 2 उठाए हुए. सो एप्रिकॉट आर्डवर्क, एप्रिकॉट 7, एप्रिकॉट माई, एप्रिकॉट फॉरएवर. ये जितने भी दफा मैं कर रहा हूँ, बाय द वे अक्सर बुक्स में ये नहीं लिखा होगा कि आपने नेगेटिव सैम्पलिंग जब करनी है तो वो कौन से तरीके से करनी है. सिर्फ लिखा होगा रैंडमली सैंपल कर लें, तो उसका जब भी ये मतलब होगा कि आप ये नहीं देख रहे कि बाकी जगह कॉन्टेक्स्ट विंडो में वो आ रहा है नहीं आ रहा, यू जस्ट रैंडमली पिक फ्रॉम द एंटायर कॉर्पस. सो दैट्स व्हाट इट ऑलवेज मींस. ओके. अच्छा, अब इसकी एक डिटेल है, यहां तक हम पहुंच के रुक जाते हैं क्योंकि सैंपलिंग में ना भी एक मसला और है. जब आप इन चीजों को उठा रहे हैं अपनी कॉर्पस से, एंड यू आर बेसिकली पिकिंग दीज अप बेस्ड ऑन देयर यूनिग्राम फ्रीक्वेंसीज, जब आप वहां से पिक करते हैं, तो अभी ये सवाल रहता है कि ये उठाने की प्रोबेबिलिटीज क्या है. लाइक व्हाट डज रैंडम मीन. मैं मसला समझा देता हूँ, अगली क्लास में सॉल्व करूंगा. मसला समझने का मसला. व्हाट डज रैंडमली पिकिंग अ वर्ड फ्रॉम माय कॉर्पस मीन. इट कुड मीन टू थिंग्स. टॉस अ कॉइन, गेट अ नंबर, अपनी कॉर्पस के उस इंडेक्स से जाकर एक चीज उठा ले. तो लेट्स से मेरी पूरी कॉर्पस 1 ट्रिलियन वर्ड्स की है. Come up with a random number between 1 and 1 trillion and just pick up that word. That's one way of doing this. We don't do it like that. We do it like the Shannon visualization जो हमने machine learning में पढ़ी थी. What does that do? That's unigram probabilities, basically proportional to the frequency of the occurrence of the particular word. So we say, okay, पूरी vocabulary को 0 से लेकर 1 के बीच में मैप कर दो, where each word has a bucket proportional to its frequency in the corpus. Now generate a random number between 0 and 1. अब ये जहां fall करेगा उस word को उठा लो. Now words are getting sampled according to their frequencies. When we do this, it creates a big problem. The problem is that the stop words again become a menace क्योंकि उनकी buckets बहुत बड़ी होती हैं. So we need to come up with some kind of a method to reduce the probability of these stop words and increase the probability of rare words. ये करने के लिए हम एक काम करेंगे. वो काम इसलिए भी बताना जरूरी है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल को आप करेंगे अपने लैंग्वेज मॉडल को क्रिएटिव बनाने के लिए काम. जिस तरह से टेम्परेचर ऐड करेंगे वो उसी तरह से ऐड हो रहा होगा. तो इस वजह से मैं उसको जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा. अगली क्लास के शुरू में हम ये करेंगे और अगली क्लास में इंशाल्लाह वर्ड टू बैक हमारा मुकम्मल हो जाएगा. थैंक यू.